Hello everyone, welcome to the Fedpreneur Show, which is being hosted by the Federation of Entrepreneurship Development. It is the official student body of KIT TVI, which aims to bring all the ideas, potential, and startup under one umbrella. I and the team Fed welcomes you to the third episode of Fedpreneur Show. Today's our guest is Rishi Agarwal, who is the CEO of Ayushta, a company that creates a massive representation of data on various aspects of food and psychology in order to provide Ayurveda-driven solutions. Hello, sir. Yeah. So my first question is, what motivated you to explore the field of Ayurveda and bioscience? Yeah. So first of all, thank you, Fed. Thank you, the student body of KTBI, for inviting me. Thank you, Navdeep, for giving me this, positions to interact with all of you, and let me present what I've been doing, what I've been thinking. Yeah, sure. So, first of all, like he said, we work on the food and psychology. That's physiology, first thing. So, physiology, how the our physical system works, how the cellular level works, and how the food. So, we try to understand the food and physiology, the biological system, how it works, how it interacts, and how we can work so that this interaction should be in a sustainable way. So I remember, if I'll go back after my plus 2, I was preparing for engineering, which I was not much interested in. I was more interested in being pilot, but that was quite expensive, so I had to drop that. And I saw my result of Odisha JEE. I scored some 2000 some rank, and I didn't even knew that it's a good rank or bad rank. One of my friend told me that it's a really good rank, you'll get a good institute in Odisha. So I went for the orientation after Odisha JEE. I just sat and the screen was going that I knew that I'm not going to go into any private institution. I would go into some government something, and CET was really good. I heard of it. तो उसमें देखा बायोटेक है, and I was the first or second rank holder to get into that. तो चलो अच्छा है, status बना रहेगा अपना. I just choose biotech. That is one reason. And another reason I would say is that I always wanted to understand life. That was a very keen interest since childhood, I would say. I would always watch the insect or the leaf or something. So that was quite a thing. That's I got into biology field and into biotechnology. And then recently, I would not say recently, but in 2016, when I was getting into my MTech second year in IIT Guwahati, I realized that I'm quite saturated with the understanding of life science or biology through modern perspective. So why not explore something which is already quite back, which has already been done by a lot of people, a lot of information is in there. So then I started exploring Ayurveda field. तो वहाँ से फिर आयुर्वेदा में आया. फिर धीरे धीरे it's kind of a blending of modern science and ancient science, because I was not more interested into bringing some new research or something like that, but I was quite compassionate about it. People have done already a lot. Why would I do from scratch? So why not bring that value to the people? So that's why I started exploring that Ayurveda has a lot of potential, a lot of information. I will leverage some technology stuff so that we can bring those potential knowledge base to the people. That's how I got into Ayurveda as well. Okay. So, my second question is, given your extension experience in this field, so can you tell us more about this field and your domain, the field of your research? Field of my research, right now, Ayurveda mathematics. Yeah, definitely. So, during my master's days, lot of things was going on in my mind. कि करना क्या है,
लाइफ में बहुत स्ट्रगल था. लाइक आई वुड से आई यूज्ड टू जस्ट क्राई एट द नाइट कि यार करना क्या, आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर्स व्हिच इज रियली सेटिस्फाइंग मी. आई वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ टर्मोइल क्योंकि एक कन्वेंशनल पाथ है उसकी रिसर्च करो फिर देन प्रिपेयर फॉर GRE TOEFL और समथिंग व्हिच आई वाज डूइंग व्हिच इज अ कन्वेंशनल पाथ कि अब्रॉड जा देन डू PhD over there, have a lab and all that. तो वो तो एक कंडीशनिंग थी which we got to know from other people, those who have done. लेकिन वो satisfaction नहीं आती because I have something which I can do of that will satisfy me, that would answer my own questions and all that. The domain of research is basically biotechnology, understanding of biology like cellular biology, molecular biology, genetics, then plant bioinformatics and all that. तो ये हुआ जब स्ट्रगल कर रहा था. आई डोंट वांट टू गेट इनटू समथिंग वेरी इंटेंसिव काइंड ऑफ रिसर्च वर्क और समथिंग. तो मैंने वेट लैब नहीं चूज की. तो बायोटेक में 2 टाइप होता है, एक वेट लैब एक ड्राई लैब. वेट लैब इज मोर ऑफ बैक्टीरिया ये सबके साथ काम करो लैब में एंड पूरा दिन लग जाता है. लाइक यू आर कंप्लीट इनटू दैट. तो मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ. इसमें और भी ड्रॉबैक्स थे. आई वांट टू डू समथिंग जिससे मुझे थोड़ा टाइम मिले. सो आई चूज टू डू द ड्राई लैब व्हिच इज मेनली कंप्यूटेशनल. That's how I choose my master's thesis, which was of prediction of certain unidentified protein in lysosomes, which is one of the organelle in cell. And then I made my own MTech thesis project. खुद ही formulate किया by talking to one professor from Department of Computer Science there, Professor Ashish Anand, और मेरी जो supervisor थे Dr. Shirisha Nagatu, तो उनसे बात किया. मैंने chose this that इस फील्ड पे काम करना कंप्यूटेशन विच इज मेनली कंप्यूटेशनल बायोलॉजी सेक्टर. फिर उस पर काम करते करते ये भी फिगर आउट हो रहा था कि लाइफ में क्या करना है. जब मैं आयुर्वेद एक्सप्लोर करा था तो फिर इसका थोड़ा ब्लेंडिंग होने लगा. फिर आयुर्वेद के डेटा पॉइंट्स को समझा. फिर ये समझा कि उसको कैसे वी कैन लेवरेज न्यू टेक्नोलॉजी लाइक मशीन लर्निंग एंड ऑल दैट, so that we can explore more of Ayurveda. We can get this thing to the people in a very comprehensive and sustainable way, so that कि जो value Ayurveda देना चाहता है वो लोगों तक धीरे धीरे पहुँचे. तो with the understanding of biotechnology, network biology, systems biology, and of Ayurveda philosophy, you would say Ayurveda science, I would say, not philosophy. And with the computational issues and all that. So like while doing it, how did the idea of Ayushla and Ayurveda informatics came up? Like, and when did you think like I should start this? तो ये तो आयुष्ला as such idea मेरे को आया कि वही that I was going through figuring out myself कि करना क्या है. जब आयुर्वेद पढ़ रहा था and I knew about my field that I have 2 possibilities of doing. एक होता है बेसिक साइंस रिसर्च, यानी कि बेसिक साइंस रिसर्च, और एक होता है अप्लाइड साइंस रिसर्च इन आवर फील्ड बेसिकली रिसर्च फील्ड में. तो बेसिक साइंस इज बेसिकली यू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ समथिंग, हाउ इट्स फंक्शनिंग, लाइक सेल कैसे काम कर रहा है, राइट, how the cell is working, or how the heart is working, or how the lungs is working. So this is basically the understanding of something is known as basic science. उस पर हम रिसर्च करते हैं क्योंकि जब समझेंगे तभी उसमें कुछ इंटरवीन कर पाएंगे या कुछ दवाइयाँ बना पाएंगे या कुछ भी कर पाएंगे. तो ये जो दवाइयाँ बनाना है, कुछ भी बनाना है, दिस इज नोन एज अप्लाइड साइंस. कि पहले मैंने समझा कि ऐसे फंक्शन करता है. फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी ऐसे फंक्शन करती है. अब मेरे को लेवरेज करना है कि ग्रेविटी अगर ऐसे फंक्शन करती है तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ. कैन आई मेक अ कार और समथिंग लाइक दैट, सिमिलर टू द अप्लाइड साइंस. तो जब when I was aware of this, that these are the 2 things that I can do, basic science research and applied science, and I really wanted to do something applied कि मैं अपनी आंखों से देखूँ कि that there is some value of my work or my existence like that. Yeah. तो ये था कि कुछ अप्लाइड होना चाहिए so that I can see the value of what I am doing. फर्स्ट थिंग. दूसरा ये था कि अब ये देखना है करना क्या है, अप्लाइड में किस में अप्लाई करना है, विच फील्ड हैव टू वर्क ऑन.
कहाँ पे शापा मचा हुआ है टाइप, राइट? Okay. तो ये है कि लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ लाइफस्टाइल काइंड ऑफ डिजीज विच आर मोर associated to diet linked disorders like obesity हो गया या cardiac disease, hypertension हो गया या osteoporosis, anemia, nutritional deficiency and all that. तो फूड की वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स ग्रो कर रहे हैं, यानी कि फूड सेक्टर पे काम करना पड़ेगा. दैट्स हाउ आई वाज काइंड ऑफ डूइंग रिवर्स इंजीनियरिंग. समझ रहा था करना क्या है. तो ये समझ में आया कि फूड है, क्योंकि फूड जो बना रहे हैं उनको बायोलॉजी नहीं पता. अब वो बना दिया पनीर 2 प्याजे समथिंग डाल डूल के कुछ भी, वो तुम्हारे बॉडी में जा रहा है लेकिन बॉडी को डिसफंक्शन कर रहा है somehow. I'm just saying as an example, I'm not saying that Okay. it dysfunction पनीर 2 प्याजा as such. But if they are making some food, how Some it's, dish. how do they have the understanding of how How when the will food it is affect going, our body? exactly how it's going to affect, वो कैसे उसको रेगुलेट करा है, गवर्न करा है बॉडी के फंक्शनैलिटीज को. तो उनको नहीं पता. तो आजकल जो भी चलता है फूड इनोवेटर एंड ऑल दैट, ये सॉस डाल दिया, वो सॉस डाल दिया, ये सब कुछ भी करते हैं. लाइक एनीथिंग, पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है. लाइक ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाना चाहिए. ये all most of the Indians know that, don't eat Right. hot and cold at the same time. But you'll see there is a prevailing of this kind of concept that you will be eating one very hot and at the same time you'll be eating something very cold, which is very bad for the health as such, bad for the physiology. तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं. तो इन सारी चीज़ों को सॉर्ट करना है, यानी कि अब मेरे को उतरना पड़ेगा फील्ड में. उतरना पड़ेगा यानी कि मेरे को इन दिस लाइक द टर्मिनोलॉजी आई वुड चूज इज एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा. एंटरप्रेन्योर नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा थ्रू अ बिजनेस मॉडल. दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग, कि अब उतरना पड़ेगा अपने को. तो ये जब आइडिया आया आयुषला का, आयुषला नाम भी तभी ऐसा आया, उसके पीछे भी एक स्टोरी है. सो आयुष, मैंने सोचा कि आयुष इज लाइफ, तो कुछ आयुर्वेदा से एसोसिएटेड रखना था. आयुष वगैरह वगैरह समथिंग, तो और शॉर्ट रखना था, समथिंग वेरी माइंड कैचिंग समथिंग. तो आयुष मीन्स लाइफ, ला हिंदी में ब्रिंग बैक, तो ब्रिंग बैक द लाइफ करके उसको ओल्ड टाइम्स. या एग्जैक्टली किया कि ओल्ड टाइम को फिर से एंशिएंट साइंस ऑफ आयुर्वेद को लेके आना. तो वैसा था. अब फूड फील्ड में उतरना है, तो मैंने केटरिंग थोड़ा स्टार्ट की कैंपस पे. अब एमटेक करने के दौरान वी कैन नॉट डू मनी मेकिंग स्टफ इन कैंपस, विच इज जिसके लिए मेरे ऊपर कमेटी भी बैठी 2 बार. यू आर डूइंग मनी मेकिंग स्टफ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. तो उसके लिए थोड़ा फिगर आउट किया. फिर कैंपस के बाहर एक रूम लिया रेंट पे. एक मेस वर्कर था, उसके भाई को बुलाया उस सैलरी बेसिस पे. बहन की फ्लाइट टिकट बुक किया हुआ है, बिकॉज कुकिंग का मेरे को कोई आइडिया नहीं था. आई नेवर डन कुकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो मेरी बहन को मैंने बुलाया, उसका भी बहुत जुगाड़ किया गर्ल्स हॉस्टल में आई डी कैंपस, बिकॉज शी इज आउटसाइडर. तो उसका भी जुगाड़ किया. तो वो ट्रेन करती थी कुक को, जिसको हमने हायर किया, जो हमने रूम रेंट पे लिया था, वहाँ पे कुकिंग शुकिंग चलती थी. आई यूज्ड टू बी लाइक अ डिलीवरी बॉय. मैं व्हाट्सएप और कॉल पे ये लेता और डिलीवर करता हॉस्टल टू हॉस्टल. एंड हम केटरिंग भी करते थे, यानी कि जो कैंटीन्स हैं उनको सर्व करते थे विद अ बिग मार्जिन, सो दैट दे पुश द प्रोडक्ट. पुश एंड सेल वाला कॉन्सेप्ट है कि उनसे मैंने कैंटीन वालों से पूछ लिया, आपका जो बेचते हो आप, कितना आपको मार्जिन वगैरह मिल जाता है. तो उसने बोला कि कोक और समथिंग पे 10 रुपये मिलता था. बोला मैं मेरे प्रोडक्ट पे 12 रुपये दूंगा. तो ही स्टार्टेड पुशिंग आवर प्रोडक्ट. इन दैट वे इट स्टार्टेड, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आई लॉस्ट माई हेल्थ. आई लॉस्ट 9 kg ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, बिकॉज आई यूज्ड टू बी डिलीवर. एंड आई गुवाहाटी कैंपस इज वेरी बिग, लाइक 8 किलोमीटर रेंज. और वो मेरी टूटी फूटी साइकिल थी, उसको जैसे तैसे करके पीछे कार्टन पे खाना वाना रख के यूज्ड टू डू दैट. एट द सेम टाइम आई वाज एक्सप्लोरिंग इनटू आयुर्वेदा फील्ड. लंच तक एमटेक का काम, लंच के बाद आई यूज्ड टू गो टू द गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज गुवाहाटी का एक है, बस लेके फिर वहाँ पे आई यूज्ड टू स्टडी आयुर्वेदा. सो आई डिड स्टडी ऑफ आयुर्वेदा फॉर अ ईयर काइंड ऑफ. फिर धीरे धीरे उसको कैसे ब्लेंड करके लेके आना, तो दोनों फील्ड स्टार्ट हुई, आयुर्वेद इन्फॉर्मेटिक्स एंड आयुष. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. देन फिर उसके आगे देयर इज अ जर्नी. So like in your campus, they were mostly students. Yeah. So like, did they like Ayurvedic food? Like, So I'll give you one example of one of the recipe. हम लोग एक लौकी रैप देते थे जो हाईली डिमांड में था, लौकी रैप. तो लौकी एक सात्विक फूड है एज पर आयुर्वेद. यानी कि सात्विक यानी कि you will your functioning is very smooth, you feel very calm, you can function really well, your mind function. It's not
it's not very blurred with the thoughts or something like that. That's basically the सात्विकता. तो ये था कि लॉकी को यूज करना है. अब मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको, हाउ आई कैन ऐड सम न्यूट्रिशनल वैल्यू टू इट. तो buttermilk has certain proteins that enhances the absorption of nutrition like beta lactoglobulin. तो हम लौकी के पकौड़े बनाते हैं जिसको कोफ्ता भी बोलते हैं. फिर उसको हम सोक करते थे बटर मिल्क में, तो सोक हो गया. और बटर मिल्क वाज आल्सो वेरी टेस्टी एंड लाइक दैट. तो उसको सोक कर लिया. नाउ देयर इज कंपोजिशन ऑफ व्हाट, सात्विकता ऑफ लौकी एंड द बीटा लैक्टोग्लोबुलिन ऑफ बटर मिल्क. ये दोनों कंबाइन हो गए. नाउ व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द, तो और रोटी का रैप व्हिच वाज नॉर्मल गेहूं की रोटी. तो जब रैप को आप खा रहे हो, so you are consuming sattvikta and beta lactoglobulin which is enhancing the absorption of the nutrition in your body. So it's a sustainable way of eating. यानी कि ये excretion में ज़्यादा nutrition नहीं जाना चाहिए, body में जाना चाहिए. तो वो अपने, so that's a sustainable. Sustainable का मतलब है wastage कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का use हो, right? तो food एक sustainable कैसे बनाना with the blending of biotechnology understanding and आयुर्वेद की सात्विकता और इसका एब्जॉर्प्शन, जिसको हम बायोटर्म में बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी एनहांसमेंट. तो इन दोनों को ब्लेंड करके ये स्टार्ट किया. लाइक सो दिस इज द आयुर्वेदिक फूड एंड पीपल लाइक बिकॉज वी फोकस ऑन बोथ द टेस्ट पार्ट एंड आल्सो द हेल्थ पार्ट ऑफ इट. Okay. With the holistic approach of Ayurveda and modern biotech. So you have also a startup known as Ayurveda Informatics, which comes under Ayushla. Yeah. So can you tell us more about that? Sure. So it's not a startup, I would say, but it's Part of one of the product of Ayushla and one of the Okay. subsidiary that we are focusing on. And as I explained in my journey that I started exploring Ayurveda and I wanted to take the Ayurveda, make the outreach of Ayurveda to the people in a way that gives a comprehensive understanding of Ayurveda through some modern science perspective also, Okay. and with by leveraging the computational tools and technologies like machine learning and all that. Right. So that's how. So this is not one of the startup. This is one of the product. And to be very specific, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बुक्स है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, all these books written by sages, right? तो एक हो गया जैसे डायग्नोस्टिक डेटा पॉइंट्स, माधव निदान एक बुक है. तो उसमें डायग्नोसिस कैसे की जाती है कोई डिजीज के, उसके सारे डेटा है, ऑर्गन सिस्टम ऑल दैट. तो वो डेटा को फिर हम डिजिटाइज करते हैं, फिर उसको विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न साइंस एज वेल, उसको कैसे हम बेहतर तरीके से समझा सकते हैं विद द मॉडर्न मेडिकल टर्मिनोलॉजीज. And by using computational technologies, we try to integrate that and bring that over a web application and mobile application. Mobile app nahi bana, but it's a web application like Ayurveda Informatics, where you can access specific food ingredients or herbs based on certain variables like taste. आपको कैसा taste का चाहिए flavor. So you can write, you can choose sweet or astringent. अगेन देन यू कैन चूज तासीर, जैसे होती है गर्म करती है बॉडी को, ठंडा करती है, तो वो भी यू कैन चूज. उष्ण या शीत. फिजियोलॉजिकल एक्शंस भी है, फॉर एग्जांपल यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है तो देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड मूत्रला, सो यू कैन सिलेक्ट मूत्रला. आंखों की पावर अगर कम है, सो यू कैन सिलेक्ट चक्षुष्य. डिजीज कोई है, अस्थमा है तो श्वास, डायबिटीज तो मधुमेह, ऑल दैट. तो ये इंटरफेस है आयुर्वेद इन्फॉर्मेटिक्स का कंप्यूटेशन इंटरफेस विच यू कैन एक्सेस. And by entering this all the data points based on which you want specific food or ingredients that's good for you, like for which you are searching. So when you selected this, you will get to know like barley or edible camphor or mango, like that. Even we have given the filter over there that you want fruit or legumes or grains, all that. So you can just select and filter. जैसे Flipkart में filter होता है ना, brand wise and size wise like that. You can put up a filter on culinary categories कि आपको कौन सी culinary category का खाना चाहिए, herbs वगैरह होगा. Shortlist हो गया,
now you can inculcate that into your diet or you can start consuming that. And live तो इससे healthy क्या living. होगा? It's so in that way we are trying to bring Ayurveda through computational method, outreaching to the people and bringing a sustainable food landscape. अब घर घर तक पहुंच सकता है वो, like you can follow by using the interface only like that. Okay. So like whenever you go in market to sell a product, there should be a customer market who can buy this. So like what do you think, what's the current situation of spirituality and Ayurveda in India? One of my mentor Deva Prasad Das is from Puri. Okay. वो बोलते हैं कि there are two sets of people as such. One who wants to avoid pain and one who wants to get pleasure, right? दो सेट में हम देख सकते हैं पेन एंड प्लेजर टाइप में, राइट? लाइक कि मेरा पैर में स्प्रेन है तो आई वुड गो टू द डॉक्टर टू गेट सम मेडिकेशन एंड स्प्रेन चला जाए. अब मेरे को प्लेजर चाहिए तो मैं क्या करूँगा? फॉर एग्जाम्पल आई विल गो टू सम मसाज सेंटर एंड आस्क कि भाई मसाज करते हैं. तो एक तो है कि I don't want something which is not making me feel happy or something. And दूसरा फिर एक आता है कैटेगरी कि मेरे को एक्स्ट्रा प्लेजर चाहिए और समथिंग, यू नो, एक्स्ट्रा लग्जरी और समथिंग लाइक दैट. तो ये जो मार्केट है आयुर्वेद का एंड लाइक यू सेड स्पिरिचुअलिटी आई वुड से, तो पीपल मेनली आयुर्वेद में आई गेस दे आर मोर इनटू द प्लेजर साइड एज सच, आई वुड से. आई डोंट नो कि उनको थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ चाहिए. दे डोंट वांट टू लाइक रिलीफ पेन एज सच. सो while I started this journey, like I said, I got quite intuitively about कि आयुर्वेद में बहुत पोटेंशियल है, लोगों तक नहीं आ रहा, इसलिए उसका मार्केट नहीं बन पा रहा. Like Steve Jobs says this statement that कभी कभी कस्टमर को ही नहीं पता रहता उनको क्या चाहिए, राइट? ही said in that way. तो कोविड ने ये बताया कस्टमर को क्या चाहिए. सो वहाँ पे धीरे धीरे अवेयरनेस आई लोगों को. आई स्टार्ट माई जर्नी इन आयुर्वेदा इन 2016 एज सच, लाइक जस्ट स्टडी करना स्टार्ट किया था. कोविड आया अपना 2019 एंड इन 2020 फर्स्ट काइंड ऑफ. तो वहाँ पे एंड ऑल्सो आई वुड से कि उससे पहले उतना उसका मार्केट नहीं था. आयुर्वेद योगा उतना लोग फॉलो नहीं करते थे, गिमिक समझते थे, ज़्यादा नहीं फॉलो करते थे कि मम्बो जम्बो टाइप चीज़ है, क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ वाली चीज़ नहीं है ना कि एस्पिरिन खाया दिमाग यू नो सर दर्द चला गया, ऐसा उतना वैसा नहीं, इंस्टेंट वाला स्पॉन्टेनियस थे. तो कोविड के टाइम पे देयर वर मेजरली थिंग्स अबाउट यू नो इम्यूनिटी. एंड इम्यूनिटी मॉडर्न कोई पिल में ऐसा नहीं है खा लिया यू नो लाइक दैट. एंटीबायोटिक कुड बी वन थिंग दैट you know kills this, but there has to be very integrative foundation of immunity. आप खाली सिर्फ पिल्स पे डिपेंड नहीं कर सकते कि एंटीबायोटिक है, बिकॉज एंटीबायोटिक भले बैक्टीरिया मारा उसके खुद के अलग अलग साइड इफेक्ट्स भी हैं, रेजिस्टेंट भी डेवलप करता है वो, इनर इम्यूनिटी बिल्डिंग होगी. एग्जैक्टली. तो आयुर्वेद फिर वहाँ पे धीरे धीरे लोगों तक यू नो देयर वाज अ एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट, बिकॉज पीपल नाउ कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला था मॉडर्न साइंस से एज सच. वैक्सीनेशन बनने में तो टाइम लगा ना, लेकिन वैक्सीनेशन बनने तक दे हैव टू डू समथिंग अबाउट देयर इम्यूनिटी. तुलसी खाना है या यू नो समथिंग ऑफ जिंजर और विटामिन सी पिल्स बहुत ज़्यादा बिकने लगी एंड ऑल दैट. तो वहाँ पे धीरे धीरे रियलाइजेशन और देन देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ दिस आयुर्वेदा मार्केट. गिमिक को लोग फिर एक्सेप्टेंस थोड़ा बढ़ने लगा क्योंकि वो काम करने लगा, क्योंकि वो एक्चुअल में फिर उसको अपनाए एंड देखे, फिर वो धीरे धीरे उसका मार्केट बिल्डअप हुआ. अभी आई वुड से नाउ पीपल आर अवेयर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ आयुर्वेदा एज सच, एंड नाउ पीपल आर थोड़ा शिफ्ट भी आ गया फ्रॉम द टाइम ऑफ कोविड. काफी ज्यादा लोग शिफ्ट कर गए. एग्जैक्टली. एक मास कॉन्शियसनेस जैसा जिसको बोलते हैं. सो now most of the people are aware of the potential of Ayurveda, and because of the awareness there is little bit of acceptance also, क्योंकि अच्छे entrepreneurs are also getting into this, right? You know, like
माइंड हाउस इज देयर, द कंफर्ट इज देयर, Yeah. थोड़ा फिटनेस के साइड पे आया है, बहुत सारे फूड ऑर्गेनिक हेल्दी पर्सनलाइजेशन सारे फील्ड में। वी ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदा इन योगा हेल्थ प्लान पोस्ट दिस। उससे पहले भी देते थे लेकिन उसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा पेसअप किए। सो दैट वे आई सी दैट देयर इज अ एक्सपांशन इन दिस मार्केट ऑफ आयुर्वेदा, acceptance in national and also international level. There is more in yoga with लोग उसको accept कर रहे हैं। एंड मतलब अभी ऑल्दो कोविड जा रहा है बट लोग अभी स्टिल उस पे स्टिक आयुर्वेदा पे। डू यू थिंक लाइक यू आई आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज यू आल्सो रन अ कैफे नोन एज आयुष्ला कैफे Yeah, with ayurvedic products, like still people are loving this. people are loving that like क्योंकि टेस्ट भी मेंटेन रहता है फूड का। Okay. तो टेस्ट एक फैक्टर ही है। हेल्थ Yeah. हमेशा सेकंड फैक्टर रहती है लोगों की। उनको थोड़ा प्लेजर पहले ज़्यादा चाहिए है कि इट्स रियली गुड, ठीक है, हेल्दी है अनहेल्दी है वो बात करता है। हेल्दी है तो इट्स अ प्लस पॉइंट, दे लव दैट, ओके इट्स हेल्दी बिकॉज कोई एसिडिटी या कोई ऐसा सिम्टम नहीं आ रहा उसके बाद दैट दे फील कि यार कुछ गलत खा लिया। लाइक इफ यू कैन टेक पिज्जा और समथिंग, आई डोंट नो, दैट्स योर सब्जेक्टिव फीलिंग, बट एक होता है कि यार क्यों खाया ये, क्यों किया, यू फील गिल्टी अबाउट इट, बट इन आवर फूड वैसा नहीं है। तो लोगों का प्लेजर तो है ही है, भले वो कोविड आए या है, वहाँ पे ये रहता था कि कंस्टिंजेंसी आती थी, अब कुछ कर नहीं सकते यार, मतलब काढ़ा पीना ही है पीना है। अब कोविड थोड़ा चला गया, काढ़ा को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि जंप इनटू कोल्ड कॉफी ऐसा थोड़ा प्लेजर पे आ सकते हैं। तो वो एक इंटेंशन रहता ही है लोगों का कि प्लेजर ओरिएंटेशन रहता ही है मोस्ट ऑफ द पीपल का एज सच, भले ही वो थोड़ा हार्मफुल भी हो बिकॉज इट्स नॉट विजिबल ना अंदर क्या चल रहा है, हाउ कैन सी दैट्स ओपैक बॉडी। Yeah, totally. दैट्स व्हाई। So, like you mentioned, like in your college also, you have like you used to sell Ayurvedic products, and after COVID also, like now you're running a cafe. So, उस तब टाइम में और अभी में क्या डिफरेंस है? तब मार्केट अब ज़्यादा था, फिर अभी ज़्यादा है, या फिर ऑब्वियसली अभी शायद कोविड की वजह से ज़्यादा हो गया होगा, Yeah. बट जनरली क्या रिस्पॉन्स आता है उस समय से और अभी का, आपको क्या लगता है? आई थिंक गैप सबसे ज़्यादा इसमें आया था कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट। तो उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं है, उस चीज़ को समझाने वाला नहीं। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड ही आस्क्ड मी लाइक कि जो तासीर बोलते हैं बॉडी को गर्म करता है ठंडा करता है, ये क्या होता है? बट ये हर घर में आज भी अगर बात करोगे तो लोग बोलते हैं कि इसको मत खा सर्दी हो जाएगी, इसको मत खा एसिडिटी हो जाएगी, अब ये बॉडी गर्म कर देगी, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स मत खाओ बॉडी गर्म कर देगी, रात को खीरा नहीं खाओ सर्दी लग जाएगी। ये सब क्यों बोलते हैं? कुछ तो साइंस है, राइट। तो लेकिन इसको उस तरीके से नहीं समझाते तो लोग इसको गिमिक समझते हैं। तो पहले तो ये था कि मतलब पहले और अभी यही है, जिसको नहीं जानकारी है उसका एक्सेप्टेंस थोड़ा शायद कम ही होगा बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड। फिर उसमें कुछ लोग ये भी हैं कि दे थिंक दैट देयर इज दिस एलिमेंट ऑफ हिंदुइज्म और समथिंग, सो दे वांट टू अवॉइड इट कि ओम बोल दिया तो यार धर्म भ्रष्ट हो गया, या योगा है या आयुर्वेद। तो एज सच अलग अलग पर्सपेक्टिव है, सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव कि एक तो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस सब्जेक्ट की, या कुछ उनके खुद के परसेप्शंस हैं, या कोई लोग इसको सिर्फ गिमिक समझते हैं। कोविड में ये हुआ कि नाउ पीपल आर बिकमिंग अवेयर बिकॉज इन सोशल मीडिया यू विल सी दोज नॉलेज स्टफ। तो मेरे सामने आ रहा है कि अदरक खाने से ये होता है इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेद एंड ऑल दैट। तो अब मीडिया के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया एंड ऑल दैट, Okay. now you can even see that knowledge. Not individually you will study Charak Samhita, Shusha Samhita, you will not do that. Right. But through this awareness due to the COVID, लोग उसको भले ही स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, they are at least आ रहा है उनके सामने वो चीज़। तो इसलिए अब उसका मार्केट थोड़ा एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, बट फिर भी देर इज ऑलवेज प्लेजर ओरिएंटेड। अगर प्लेजर को तुम हटा दोगे फिर वो नहीं चलेगा इन टर्म्स ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट और समथिंग। राइट। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब तक आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आप उसके सोल्यूशन को नहीं देखते हो। तो आफ्टर कोविड इम्यूनिटी की लोगों को प्रॉब्लम आई कि वो हेल्थ इश्यूज फेस करने लगे, तो तब वो थोड़ा ज़्यादा आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट कर गए। मे बी दिस इज ऑल्सो द रीजन। या ऑब्वियसली प्रॉब्लम फेस तो हुई है बहुत लोगों को, हर एक को इम्यूनिटी ड्रॉप तो हुआ ही है, भले ही कोविड इन्फेक्टेड हुआ है नहीं हुआ, इम्यूनिटी का आई गेस मोस्ट ऑफ लोगों को तो हुआ ही है ड्रॉप। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड बट देयर वाज ड्रॉप। आई आल्सो हैव फेस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कफ एंड ऑल दैट। आई डिडंट चेक, आई माइट नॉट बी कोविड पॉजिटिव, बट ये आया था।
तो जब ये आता है तो हमारा करेक्ट क्या जाता है, विच इज गोइंग इन द मार्केट, कि मेरे को भी तो नहीं हुआ, शायद मुझे भी हो सकता है। तो उस वजह से भले ही प्रॉब्लम नहीं आई है, बट एक फियर फैक्टर भी आ गया है कि मे बी आई माइट गेट इनटू दिस थिंग, सो व्हाई नॉट यू नो एनहांस माय इम्यूनिटी थ्रू समथिंग। Okay. So, like, how did you find like the team for this startup? Yeah. ये तो जर्नी थी, टीम टूटी बनी ऐसे ऐसे करके वैसा होता है। एंड मेजरली आई वुड से टीम बनाने में ना लाइबिलिटीज वाली चीज़ होती है। एवरीवन हैज देयर ओन फैमिली, ओन स्टफ एंड ऑल दैट, तो लाइबिलिटीज होती है, रोटी कपड़ा मकान, फिर फैमिली एंड ऑल दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। स्टार्टअप की जर्नी में वो थोड़ा तकलीफ रहता है इनिशियली, हाउ यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ योर बेसिक लाइबिलिटीज व्हिच वी हैव, एंड वंस यू हैव रीच्ड अ सर्टेन एज, थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी आती है, राइट? वंस यू हैव क्रॉस्ड 25-26, then there are certain other pressures from the family, on yourself also, your own responsibility you have to take off, Feel responsible. yeah, तो इस वजह से how it happens, like people joined, the liabilities couldn't taken care of, for which it broke, फिर धीरे धीरे करके वो we met people who has similar vision तो and passion and also skills and expertise in that field, so they can serve, maybe not like a full timer but in a part timer. So I started talking to a lot of people, exploring, meeting a lot of people, जहाँ पे भी domain sharing होता था, passion vision sharing होता था, we started then collaborating, we not without like full time but part time। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके फिर टीम बनी, फिर और भी कुछ सीखने को मिला टीम बिल्डिंग में। तो now we have like Ayurveda experts, we have from yoga field, we have developers for the interface, back ends and front end developers, फिर machine learning वाले भी बंदे हैं, computational biology वाले भी बंदे हैं, and so this is how we have made our team. They are not like full time but we work. You guys work together yeah. and do research on certain things. Yeah. Okay. So like what, like आपने जो पहले अपनी लाइफ में इनिशियल स्टेज पे सोचा था कि आपको ये करना है, जैसे आपने कॉलेज में आपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया था, अब आप अपने उसका एक कैफे खोल दिया, एंड ऐसी वेरियस फील्ड्स में आपने जो जो सोचा था वो आप उसके स्टेज पे आप रीच कर रहे हो, अपने जो आपका जो एम था वो आप उस पर जा रहे हो, तो आपको अब कैसा फील होता है? लाइक आपको खुशी मिलती है? लाइक व्हाट इज द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस? Yeah, I would say that's why I'm continuing doing this, even if it's a little tough, but अच्छा लगता है because इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, I would say। Okay. एक तो ये है कि when you know your capabilities, your skills and expertise, अगर आप उसको लेवरेज नहीं करो ना कहीं आपको थोड़ा बैकवर्ड या गिल्टी फील होगा। व्हाट आई फील पर्सनली, अगर मेरी स्किल्स एक्सपर्टीज है इज समथिंग लाइक बायोटेक इज माय बैकग्राउंड एज सच, आई हैव अ रियली गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस लाइफ, हाउ इट वर्क्स। तो अब इसको कैसे अप्लाई करना है, सो दैट आई कैन सी इफ समवन इज someone to whom I am serving or giving product, or who is with whom I am interacting, उनके थ्रू how it's adding a value to them, तो उसको देख के एक satisfaction feel होता है, fulfillment feel होता है, right? Any way you want to feel happy, fulfilled like that. तो ये है, and so one thing is that कि I am able to use my full potential of skills and expertise what I have, and then there is a vision कि मेरे को like I am envisioning that this is how I want to see nation or the world or people surrounding me, तो उसमें भी बदलाव आ रहा है, तो वो देख के भी एक वो बना। These are all intangible stuff, like you cannot see it, you can feel it, you can experience it while you are interacting or while you are seeing। कि कोई फॉर एग्जाम्पल ये तुमने खाना खाया मेरे कैफे में आके, तो अब मुझे तो नहीं दिख रहा है कि हाउ यू आर फीलिंग इट, यू कैन एक्सप्रेस इट, राइट? सो व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग दैट कि इट्स सो गुड एंड ऑल दैट, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग,
with your own experience and feeling. Hopefully you're not just satisfying me with your words, you're genuinely expressing it. तो वो भी पता चल जाता है. So while I'm getting that thing from the people ना, तो वो that makes me feel happy as such. I'm not pursuing, like I'm not running about this happiness as such, but वो जब आता है तो feels good. So like, do you get a like sound sleep at night? Like when you see happy customers coming at your cafe and they're enjoying this Ayurvedic food. So like when you end your day, like do you get a sound sleep at night? Yeah. So that is one thing, but my sound sleep does not depend on the as such. Okay. That's a very thing. But yeah, अच्छा तो लगता है when you have done different activities, you have interacted with different people throughout day, you have worked for your company, for a startup, you have with your team and all that. ये छोटी चीज़ों में जो छोटा experience या feeling जो भी हो रही है, वो थोड़ा ऊपर नीचे करके it happens. Yeah, when some customer initially तो बहुत होता था. अभी I think I'm like acquainted with that. Okay. तो initially तो बहुत होता था, कोई खाता है एकदम खुश हो रहा था यार बहुत अच्छा and all that. तो because you have just started and you are seeing it people happening. are loving this or एकदम तो तब तो एकदम खुशी का भंडारा जो अंदर फट जाता. okay. I'm like acquainted with that कि हाँ okay this works in This that way works, and this is how they are going to experience or feel it. So वो अच्छा है कि now this has been like working in that way and I want to proceed in this direction. Okay. So मतलब जब आप इतने लाइफ के इतने आगे स्टेज पे आ गए तो बहुत सारे मिस्टेक्स भी होते हैं, बहुत सारे फेलियर्स भी होते हैं यहाँ तक आते आते. So what do you think कि what was your biggest failure or mistake of your life and how did you like if yes, if there is, then how did you learn from it? Failure I would say would be team building. शायद उसमें मैं थोड़ा रह गया पीछे. टीम बिल्डिंग हाउ आई वुड हैव कि टीम बिल्डिंग होती तो इसमें एक अलग पेस एंड ऑल दैट वुड हैव हैपेंड. सो समहाउ आई थिंक अगर फेलियर को कंसिडर किया जाए तो आई वुड से इट्स इन टीम बिल्डिंग. उसकी समझ शायद तब उतनी नहीं थी, अभी है. सो नाउ आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट आई वुड कंसिडर दैट कि उसकी या तो मेंटरशिप या गाइडेंस मुझे होती, कोई कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के साथ समझा पाता हाउ द कंपनी वर्क्स और हाउ द टीम वर्क्स, हाउ यू शुड बिल्ड अप योर टीम कि किस टाइप के लोगों को रखना चाहिए, किस टाइप के लोगों को. तो उतनी समझ नहीं थी. इट वाज जस्ट गोइंग. सो आई वुड से दैट वुड बी द समथिंग व्हिच इज अ काइंड ऑफ अ फेलियर और काइंड ऑफ अ गैप दैट रिमेन्ड. Okay. Yeah. So like the audience of this podcast is generally college students, which is from like age of 18 to 21 or 22. So like if you can go back to that, like this question is really asked by many people. So like if you can go back in the time of the college days or like 18 to 20 like years, so what would you do in that time? Like if you can go now, like अच्छा मैं अपने 18 साल के ऋषि से मिलता हूँ तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे या फिर उसको बोलोगे या फिर क्या करना चाहोगे? ओके. तो पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा, मतलब ये हैव टू रिकॉल बैक मैं क्या करता था 18 साल में. सो 18 इयर्स आई वुड बी लाइक ये एक एडवाइस होगी जो हम लोग के लिए, जो भी ऑडियंस है, कि अगर हम अभी से ऐसा क्या अभी करें जो आप लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टाइम पे नहीं हो पाती. I would say that's more of skills and expertise. Okay. जितने skills you will have ना, skills, expertise, and also I would say really important which जो मेरे साथ थोड़ा लेट पे हुआ but सब अपने टाइम पे होता है. I would say understanding how your mind works, how your body works, mainly mind. वो समझ में आए ना how your mind works, why you are thinking this, why you are thinking that, what is the tendency of that thought, why you are thinking that, क्यों ये tendencies आ रही हैं. Like मुझे for example I want to
go to have pizza, or I want to go to have party, I want to go to temple, or I want to read a book or something, I want to do start or something. So ये जो भी thought आ रहा है, how you can do a little reverse engineering to see the comprehensive biogenesis of the thought. ये बना कैसे, क्यों बना, ये जब आएगा ना बहुत सारी क्लैरिटी आएगी. तो ये जितना जल्दी हो तो उससे क्या होगा ना, आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत क्लैरिटी आने लगेगी. You will not spend much time on something that you really have no idea about. Like you just saw लोग पार्टी कर रहे हैं, हम भी पार्टी कर लेते हैं. So you're getting it, like the conditioning, but you don't understand why you're doing it, I would say. So a comprehensive understanding of a thought on which you want to take action. So a little reverse engineering to see the tendencies and the biogenesis of that thought. Has someone conditioned you, that's why you're doing it? Or it's really that you really want to do it? Or it's something that you have suffered, or you have been through some crisis or something that you really want to solve it. So in that way, you have to figure that out. So if I would go back to my 18 and interact with Rishi of 18 year old, I would ask, he was quite doing it at his own pace, but फिर भी because उस time I remember I started doing yoga, pranayam, मैं 16-17 साल से start कर देता था. All that spirituality में बहुत ज़्यादा ही था, बचपन से ही था all that. तो to other 18 years, what I see to this generation, there has to be little. तो लोग spirituality को जो सोचते हैं बाबा जी, it's not like that. It's basically the understanding of comprehensive understanding of yourself, what the components that you are made of, your mind and body. उसकी बायोजेनेसिस कैसे हो रही है, थोड़ा उसको ओरिजिन से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो तो तुम्हें पता चलेगा कि क्यों कर रहे हो, ये आगे क्यों मूव कर रहे हो, और why it's happening. Okay, so like wrapping up the session, what's the last piece of advice for all of us, like us college students, from you? Advice, I think एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है, what I feel advice as is that थोड़ा अवेयर रहना, अवेयरनेस को थोड़ा बढ़ाना is quite important. Like you do meditation little bit. Meditation is basically understanding how this functioning of the mind. तो ये quite important है to understand how it's functioning. तो अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सेटल होना पड़ेगा. सेटल होने के लिए थोड़ा बैठना पड़ेगा. उसको हम संस्कृत में जैसे बोलते हैं अधिष्ठान. अधिष्ठान यानी कि पहले का हिलो मत. दैट्स व्हाई इन मेडिटेशन यू फर्स्ट सिट, क्योंकि फिजिक सिट देन क्लोज योर आईज सो दैट यू कट डाउन विद ऑल द सेंस थिंग, योर ईयर्स एंड ऑल दैट. सिट इन अ वेरी काम पोजीशन. थोड़ा बैठो, थोड़ा सेटल हो. नो टेक्निक एज सच. सिट सेटल एंड देन ऑब्जर्व. वो धीरे धीरे उसके कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आएगी. वो जब आएगी ना, बहुत सारी चीज़ों का समझ खुद ही आने लगेगा. लाइक द आंसर्स आर ऑलवेज विद इन. एवरी सेंसेशन इज विद इन. मैंने मीठा खाया, राइट, मीठा अंदर से ही आ रहा, बाहर से नहीं आ रहा. वो स्टिमुलेट कर रहा है. सो इट्स स्टिमुलेटिंग, राइट. if you are telling me some slang, right, you're stimulating something within me. If you are appraising me, or if मेरी तारीफ कर रहे हो तो मेरे को खुशी हो. तो everything outside is basically the stimulant. It's going and then it's from within it's coming up. तो उसको observe करना, when you start observing all this stuff ना, तो then there is quite comprehensive understanding also. I am using this word more and more. Comprehensive as in understand the components, its networking, and its regulation. How something is regulating something. If I am telling you slang, I am regulating something within you. If I am appraising you, I am regulating something within you. So you have to see how it's regulating. अगर मैं Japanese में slang बोलूँगा तो you will not be able to react also, because you are not able to process it. Right. तो वो नहीं काम कर रहा function. So you have to see how it's regulating. तो Japanese is not able to regulate क्योंकि वो नहीं है, you do not have. So ये धीरे धीरे apart from that, अभी के जनरेशन में क्या स्किल्स एंड एक्सपर्टीज चल रही है, उससे अपडेटेड रहो.
so that you don't lag behind. Like generally what I face is that people at this age, they don't know how to use Gmail, how to use PPT, how to use Word file, how to use Excel sheet and all that. It's a very basic stuff. Okay. So when I see that, I see them that ये तो बहुत पीछे है. बहुत पीछे At least उनको इतना आना चाहिए. Like to be very specific, Ayurveda field से जो है, जो BMS से सब कर रहे हैं, वो quite lag behind उनका Excel sheet वगैरह use नहीं करना होता. जब when I got into that field, वही मेरा था कि इनको इतना भी नहीं है, तो how would they will bring that Ayurveda to people on that. तो how that has to be updated. तो अभी के skills and expertise like machine learning चल रही है, some hardware innovation something, उससे updated रहना is really good based on your field. And apart from that, your own thing that you own, like till from life till death, what you own, तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों की हुआ ना, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करने के लिए यू आर रेडी, यू आर नॉट लाइक स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव एज सच. क्योंकि स्किल एक्सपर्टीज है, उसको कन्वर्ट कर सकते करेंसी में. करेंसी है तो फ्रीडम मिल जाएगी, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस ऑफ हैविंग अ गुड होम और समथिंग और व्हाटएवर यू वांट टू डू. वो भी स्किल और एक्सपर्टीज से टेकन केयर ऑफ. And now your decision making, it depends on how you function, how much understanding that you personally have of yourself. I would say these two ingredients to all the 18 and to the people who are watching it, ki comprehensive understanding of yourself, your faculties, and just gain little skills and expertise of present generation. ऐसा नहीं अभी धनुष चलाना सीखोगे, अभी वो उस टाइम की स्किल एक्सपर्टीज. सो तो उतनी एक अंडरस्टैंडिंग अभी मार्केट में जो भी स्किल सेट की रिक्वायर्ड है, एग्जैक्टली वो हमको उसके बारे में सीखना चाहिए. एग्जैक्टली. उससे अपडेटेड रहोगे ना, तो लैग बिहाइंड नहीं फील होगा, यू विल नॉट फील इन्फीरियर. नहीं तो यूजुअली जब मैं कॉलेज में गया था, मैंने कहा बच्चों को ये आता है, आई वाज वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, उससे फिर निकलना फिर एक स्ट्रगल सी हो जाती है. तो अगर अपडेटेड रहते हैं तो एटलीस्ट वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, तो यू फील लाइक ठीक है, मतलब कर लेंगे. और नहीं तो उसमें ही आता है कि अब क्या ही करेंगे, वो वाली फीलिंग आती है, कुछ तो नहीं आता. So these two things I would say, and always be like interact with a lot of people. Lot of learning happens with the interaction, I would say. तो interaction होना चाहिए और hustling होनी चाहिए life में. Keep hustle, don't like feel कि ये हो गया, all that, and and ज़्यादा serious नहीं होना कोई चीज़ को. Sincere होना है, I would say. Sincerity is good. Serious होना is not as such. It will drag you. In this point of time. हाँ, sincere होना is like you are aware. Serious होना है कि ये करना था, एकदम मतलब बैठ के फिर रोते रहे, वैसा और कुछ नहीं, बस इसी पे लग गया. Like keep it calm, but be sincere also. Don't go off your mind कि भूल जाते हैं. Like responsibility है, लेकिन कुछ लोग अवॉइड करके बैठ जाते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, अरे भाई ले लो आगे. That's how you go like that. Yeah. So that's what I feel. I guess it was a really great session, and there was a lot of learning. I learned new things. I get a lot of things, new things about Ayurveda. So I'm really thankful to you that you gave us the time for this podcast. Yeah, even I love that this interaction completely there. That I am able to express something which I had through my journey or through my experience as such, which might help one or two people. That's also really good. So thank you so much. That's happened. Yeah, thank you.